Today I am Monica Dhingra. Welcome everyone in this English learning channel. As I have introduced you with verb in my previous video, today again we have come back with this topic, that is verb. In my previous video I told you about the types of verb. First one helping verb, second one linking verb, and third one main verb. So today we will learn more about the main verb. So let's start. Okay. See, what is a verb? I told you, as I told in the previous video, what is the verb? Verb means action words. The action, whatever the action you do, that is called the verb. Okay. So how many types of verb? There are two types of verb. First one, transitive verb, and second one, intransitive verb. First one, transitive verb. Second one, intransitive verb. And now what do you mean by the transitive verb? Transitive verb means that needs object. Transitive verb means that needs object. It means when object is required, that is transitive, and if object is not required means needs no object. जहाँ object की need नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती, that is called the intransitive verb. These are the two types of verb, of main verb. I told you about the helping verb. I told you about linking verb. Now we will learn about the main verbs. Main verbs are mainly of two types. First one transitive, second one intransitive verb. Now see, transitive I told you that is required object, means needs object. इंट्रांजिटिव मीन्स नीड्स नो ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ट्रांजिटिव. और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड तो दैट इज इंट्रांजिटिव. अब नाउ सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कि इन विच सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड इन विच सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्ब. सी, the word that gives you answer of the question what and who is called object. The word that gives you the answer of the question what and who, किसका? what का और who का. That word will be your object. Suppose what means क्या, कोई भी thing है तो वो आपकी object होगी. who का मतलब कोई person, किसको. who means किसको और what means क्या. तो the word that will give the answer of the question what and whom, that word will be your object. जो आपको what का और whom का आंसर देगा वो वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. Now see with examples. My mother, one more thing, keep it in mind that object always comes after verb. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि this is the transitive verb and this is intransitive verb. तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, that object always comes after the verb. I told you the structure of the sentence: subject, verb and then object. First subject required होता है, second पे verb and third पे object. तो object will come after the verb. हमें verb से पहले नहीं देखना. We have to check the object after the verb. तो जो word आपका verb के बाद है और that is giving you answer of the question what and who, that word will be your object. See with the example now. My mother cooked dinner. My mother cooked dinner. Now see, in this sentence what is the object? I have already marked here. Dinner is your object. अब we have to make a question. ठीक है, आपको कैसे चेक करना है कि this is transitive और intransitive. आप my mother से पहले सबसे स्टार्टिंग में, before starting a sentence you will add the question what and who. Maybe you will get the answer of the both questions what and who, या either what और who. या तो आपको what का आंसर मिलेगा या whom का या फिर दोनों का. See, और how you will check, हम सबसे सेंटेंस की सबसे स्टार्टिंग में हम what से या whom से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. What my mother cooked, और हमें कहाँ तक क्वेश्चन फ्रेम करना है, वी हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन टिल what.
वी विल फ्रेम क्वेश्चन टिल वर्ब, दिस इज आवर वर्ब, ठीक है। तो सिर्फ वर्ब तक ही हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद वाला वर्ड तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगा। लिसन केयरफुली, व्हाट we have to assume, we will not write here what, we have to assume in the mind what my mother cooked, my मेरी mother ने क्या cooked किया, तो आंसर dinner। तो this word is giving the answer of the question what my mother cooked, dinner। if we will frame the question with whom, so let's check it is giving the answer or not। whom my mother cooked, मेरी mother ने किसको cook किया, तो डिनर वर्ड तो आपको whom का आंसर नहीं दे रहा, इट मींस दिस वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, तो दिस वर्ड विल बी योर ऑब्जेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, द स्नेक किल्ड द मंगूज, सी द स्नेक किल्ड द मंगूज। आप देखिए फर्स्टली यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन विद व्हाट एंड whom, देखिए whom द स्नेक किल्ड। अब नाउ यू हैव टू assume कि you will write here, you no need to write, only you have to assume whom the snake killed। यहाँ तक आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, स्नेक को किसने किल किया, whom the snake killed, स्नेक को किसने किल किया, मंगूज ने। तो दिस वर्ड इज गिविंग यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन whom, ठीक है। what snake killed, स्नेक ने क्या मारा, तो वो भी आपका आंसर आ रहा है मंगूज। चाहे आप what से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए या whom से कीजिए, the both words are giving the answer of the question, it means it's your object। तो मंगूज वर्ड क्या होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, एंड दिस वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन whom, अंडरस्टूड। तो इट मींस जो किल्ड है आपकी यहाँ पे, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ कुक क्या थी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब्स, ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, we have to identify the verbs, but we will identify the kinds of verb with the help of the object। object से ही हमें पता चलेगा it's transitive or it's intransitive। if object is given, object given है, तो वो आपकी transitive होगी, clear। अब see next, the plumber repaired the tap, what are written here, the plumber repaired the tap, okay। now फ्रेम द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या अज्यूम करना है, सपोज कीजिए व्हाट से आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, व्हाट द प्लम्बर रिपेयर, प्लम्बर ने क्या रिपेयर किया, टैप। द टैप वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, द टैप वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, इट मींस दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। रिपेयर आपकी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, बिकॉज इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज गिवन। ऐसा नहीं होता कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। आई विल गिव यू एग्जांपल्स इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ दिस काइंड। नाउ सी फोर्थ सेंटेंस, नाउ सी दिस सेंटेंस केयरफुली, द शेफ कुक्ड टेस्टी पास्ता फॉर अस। नाउ इन दिस सेंटेंस टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, द बोथ ऑब्जेक्ट्स दे आर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एंड whom। इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों आपको एक व्हाट का आंसर दे रहे हैं और एक whom का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव, ईदर इट गिव्स आंसर ऑफ व्हाट या whom और both, या तो खाली व्हाट का आंसर दे या whom का आंसर मिले या फिर दोनों का मिले, दैट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। सी व्हाट, फर्स्टली वी विल फ्रेम द क्वेश्चन विद व्हाट, व्हाट द शेफ कुक्ड, शेफ ने क्या बनाया, तो आंसर इज टेस्टी पास्ता। व्हाट द शेफ कुक्ड, हमें कहां तक क्वेश्चन फ्रेम करना है, वर्ब तक, कुक्ड तक, तो क्या कुक किया, टेस्टी पास्ता, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दिस वर्ड विल बी योर ऑब्जेक्ट एंड इट इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट। एंड फॉर whom, किसके लिए बनाया, फॉर whom, किसके लिए, यहाँ किसको नहीं, किसके लिए है, फॉर whom, के लिए किसके लिए हमने किससे यूज किया, फॉर वर्ड, फॉर whom किसके लिए बनाया, अस, हमारे लिए। तो इन दिस सेंटेंस व्हाट एंड whom, the objects, two objects are given, that is giving the answer of the question what and whom, both। so this is your transitive verb, ठीक है। all these are the examples of the transitive verb। now we will learn intransitive
verb. What is the difference between transitive verb and intransitive verb? Intransitive verb में क्या है? Means no object. इसमें कोई भी object required नहीं होता. Means in this sentence there should be no object. जिसमें कोई भी object given नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? Intransitive. All right? See examples. She played well. अब देखिए, you have to frame the question with what and whom as we have done in the transitive verb. यहाँ आप क्वेश्चन बना के देखिए what से है whom से. What she played. वो क्या, उसने क्या प्ले किया? No, the well word is not giving the answer of the question what or whom. तो यहाँ जो well word है, ना तो वो what का आंसर दे रहा है और ना ही whom का. It means it is intransitive. It is giving the answer of the question how she played. तो how का आंसर दे रहा है और we should know कि we have to get the answer of what and whom. हमें what का और whom का ही आंसर चाहिए. It means ये हमारा intransitive है. अगर यहाँ लिखा होता she played football, she played football, तो इसमें what का आंसर आ रहा था. What she played football, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट होता और वो ट्रांजिटिव वर्ब होता. बट इसमें हमें what का या whom का आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका intransitive. सेकंड देखिए, my mother sings melodiously. My mother sings melodiously. How my mother sings melodiously. ये आपको how का आंसर दे रहा है. It is not giving the answer of the question what and whom. आप what से फ्रेम कीजिए क्वेश्चन और whom से, किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा, हमें how का आंसर मिल रहा है. It means it is intransitive. तो जो sing है हमारी ये intransitive verb है. It is not object. ये जो well है melodiously है ये object नहीं है, ये हमारे adverbs है. ठीक है? That I will explain in my next video. Now see next, the birds fly in the sky. देखिए, now what the birds fly या whom the birds fly, both questions जो है both we are not giving the answer of these both questions. We are giving the answer of the question where. इसमें आपको where का आंसर मिल रहा है. Where the birds fly. Birds कहाँ fly करते हैं? In the sky. It means यहाँ आपका जो fly है ये है intransitive verb. Fly will be here intransitive verb. These are the verb. और ये हमारी intransitive verb होगी. क्या होगी? Intransitive verb. Because no object is given. ठीक है? ये आपको where का आंसर दे रहा है. It means in the sky आपका ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है? सिर्फ what का और whom का आंसर ही आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है? Now see the next sentence. नेहा danced. अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें तो आफ्टर वर्ब कुछ गिवन ही नहीं है. जब आफ्टर वर्ब कुछ गिवन ही नहीं है तो इट मींस देयर इज नो ऑब्जेक्ट. सिर्फ सब्जेक्ट टू वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव. आप इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करना कि व्हाट नेहा डिड. नेहा ने क्या किया? नेहा ने डांस किया. नो, व्हाट नेहा डांस. यहाँ तक हम पूरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वर्ब तक. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हु डांस, ठीक है, या व्हाट शी डिड, व्हाट नेहा डिड, तो वो रॉन्ग है. हमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही देखना है. ओनली दैट वर्ड विल बी योर ऑब्जेक्ट. तो इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इट्स वेरी क्लियर. ऑलराइट, नाउ सी नेक्स्ट. माय फादर स्नोर्स लाउडली. माय फादर स्नोर्स लाउडली. ठीक है, तो स्नोर का मतलब खड़ाके लेना. मेरे फादर कैसे स्नोरिंग करते हैं? लाउडली. नाउ लाउडली वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ. ये आपको हाउ पे आंसर दे रही है ऑलमोस्ट. तो ये आपका, और ये किसका दे रहा था? वेयर का. इट मींस दे आर नॉट ट्रांजिटिव. ये इंट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. हाउ माय फादर स्नोर्स लाउडली, ना तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है ना ही whom का. आपको वर्ब के बाद वाला, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू हैव टू चेक द वर्ड दैट इज गिवन आफ्टर द वर्ब दैट विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एंड whom. अदरवाइज इट विल बी इंट्रांजिटिव. तो ये ना तो व्हाट का आंसर दे रहा है ना whom का, ये हाउ का आंसर दे रहा है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. If you have understood well, if you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.